ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं काव्या, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मेडिकल एजुकेशन की फील्ड में करियर बनाने वाले छात्रों के लिए एक बड़ा अवसर अब उज़्बेकिस्तान से भारत पहुंचा है और यूक्रेन से लौटे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक अवसर है, क्योंकि सेंट्रल एशिया के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान ने अब देश की राजधानी में अपना कार्यालय शुरू कर दिया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ताशकेंत मेडिकल एकेडमी और एक्सिस इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन ने मिलकर भारतीय छात्रों के लिए ये बड़ा कदम उठाया है। अब छात्र सीधे ताशकेंत मेडिकल एकेडमी पहुंचकर एडमिशन से जुड़ी तमाम जानकारी और सवालों के जवाब पा सकते हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन में युद्ध के हालात के बाद पढ़ाई बीच में ही छोड़कर स्वदेश लौटे छात्रों को भी एडमिशन में प्राथमिकता दी जाएगी। ताशकेंत मेडिकल एकेडमी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के प्रमुख मुराद एम जाफरोव भी इस मौके पर दिल्ली पहुंचे हैं और भारत में अपनी आगामी योजना के बारे में उन्होंने बात की। This time we look some company who can cooperate and collaboration with us. This year we have 14 Indian company who would like working with us, but we check and we select only number one. It is Access Institute International Education, because they have very good practice and they have good technology, good staff, and they have good, very high activity for working with us. So it was main reason we selected this company, and they will represent Tashkent Medical Academy in Delhi. So do you also plan to have your own infrastructure in the national capital? Yeah, and it is just our first represent office in abroad for Tashkent Medical Academy. So it's very important. Future we would like open another office in the Chennai, for example, in South India part. Also in the we would like open office in the different country also. But in India, this time was first country which opening represents office. So what we're doing is represent office in here. They will responsible for selected Indian students who want to study and the Tashkent Medical Academy. Also, they will responsible for training our staff of the Tashkent Medical Academy to India, and we want exchange between Uzbek student and Indian student. It will be, I think, it will be improving collaboration between Uzbekistan and India. So is it the new education policy of India that has opened the doors for foreign institutions, and as a part of that you are coming over here, or you were planning since before? No, it was planning from the last year, because you know nowadays big war in the Ukraine, and we have many problems with the Indian students who study in Ukraine. They now stopping his study and they want moving to another country. So Uzbekistan nowadays open this country, and we now really transfer Ukrainian student for medical education. So this is one of reason we open a represent office in here. So will the Indian students who were in like final year of their medical education in Ukraine, they return to India after war, and they have since been seeking admission in Indian institutions. So will your institute will be open for them as well? Yeah, we can open, but you know we have very not big institute like for 10-20,000. We have very small limited quota. So we can select it, and we can select one of best Indian students who can study in Uzbekistan. And also we now have collaboration with Indian National Medical Council for the approve our education to India, because after graduation they must be pass examination in India, and then he can working like in the physician in India.
So, what is the admission criteria over there? Like, as you are aware that in India we have NEET UG for the medical education admission. So, what are the admission criteria for such students who are coming from? First of all, students, they must be sent our application if he want to study in the Tashkent Medical Academy. This application will done from the Access Institute. Then we will organize an interview because we must be knowledge of this student, how he know chemistry, biology, mathematics, some other subject. So it is our professor Tashkent Medical Academy will make organizing interview. We have just question, which is not hard question, but also it's not simple question. Just know his knowledge, what he know about medicine. Then after we can invite him and send him admission letter, invite him to study in the Tashkent Medical Academy. Thank you, sir. Thank you very much. बता दें कि ताशकेंत में मेडिकल एजुकेशन भारत के मुकाबले 25% सस्ती है और ताशकेंत मेडिकल एकेडमी सबसे अग्रणी संस्थानों में शुमार है जो भारत के एम्स से भी बड़ा है। एक्सिस इंस्टीट्यूट बीते 4 वर्षों से भारतीय छात्रों को ताशकेंत में पढ़ाई करने के लिए हर तरह की सुविधा मुहैया कराता रहा है। ये देखिए, एक्सिस इंस्टीट्यूट जो है वो ऑलरेडी उज्बेकिस्तान में 3-4 साल से काम कर रहा है और हम लोग इंडिया से MBBS के स्टूडेंट्स को वहाँ पे एडमिशन करा रहे हैं और वहाँ पर हम लोग उनकी देखरेख के लिए, वहाँ उनके रखरखाव के लिए, साथ में उनकी एजुकेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो सिर्फ एडमिशन ही नहीं है, बच्चा जब यहाँ से जाता है उसका जब डॉक्टर बन के वापस आता है तब तक की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम लोग लेते हैं। आज ताशकंद मेडिकल एकेडमी ने हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी डाली है कि हम लोग जो है उनका एक ऑफिस यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, उनको इंडिया का एक फेस बन के उनका हम लोग यहाँ पे रहें और उनके बेसिस पे न सिर्फ एडमिशन्स, ये यहाँ पे कुछ कोलैबोरेशंस करना चाह रहे हैं लाइव सर्जरीज़ के लिए, फैकल्टी एक्सचेंज के लिए, स्टूडेंट एक्सचेंज के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए भी हम लोग उनके यहाँ पे कोलैबोरेट करेंगे। तो सिर्फ एक एडमिशन्स के अलावा भी बहुत सारे इनके आयाम हैं, बहुत सारी डायरेक्शंस हैं। जैसे कि इंडिया की ट्रेडिशनल मेडिसिन है, उसको वहाँ पर इंट्रोड्यूस कराने के लिए लोग बोल रहे हैं कि आयुर्वेदा और ये सब का भी वहाँ पे करें। तो इन सब चीज़ों में रिसर्च की जाएगी, काम किया जाएगा। तो उस दिशा में एक उनको ऑफिस की यहाँ पे ज़रूरत थी, तो एक बेस बन के एक्सिस इंस्टीट्यूट जो इन लोगों के साथ में उनका एक चेहरा बन के हम लोग यहाँ पे काम करने जा रहे हैं। और जहाँ तक आगे एजुकेशन का सवाल है, ताशकंद मेडिकल एकेडमी का हम लोगों ने जो इनसे डिस्कशन किया है, इस वक्त इंडिया से जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, नए नेशनल मेडिकल कमीशन के नए रेगुलेशंस आ गए हैं। उन नए सभी रेगुलेशंस को ताशकंद मेडिकल एकेडमी भी पूरा कर रहा है। इनकी जो एजुकेशन है वो ड्यूरेशन के हिसाब से 54 मंथ से ज़्यादा है, इंटर्नशिप्स उसमें इंक्लूड है। प्लस जो इनकी डिग्री जब ये लोग ले लेते हैं तो उस डिग्री के बाद में कोई अलग से लाइसेंसिंग का सिस्टम नहीं है। एक MD की जो डिग्री ये लोग अपनी प्रोवाइड करते हैं 6 साल के बाद, उस डिग्री के बाद वहाँ पे जो स्टूडेंट है वो अपनी एजुकेशन, अपनी प्रोफेशन को परस्यू कर सकता है, मतलब प्रैक्टिस कर सकता है, जो कि NMC की रेगुलेशंस को पूरा करता है। तो एक वैलिड एजुकेशन बच्चे को मिल रही है और एक अच्छा माहौल वहाँ पे मिल रहा है, और वो भी इंडिया की एजुकेशन जो हम प्राइवेट कॉलेज में देखते हैं उससे 25% कॉस्ट के ऊपर, और ज़्यादा दूर भी नहीं है। और उज्बेकिस्तान एक इंडिया फ्रेंडली कंट्री है। ताशकंद हम सब लोग जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम से इंडिया से जुड़े हुए हैं। तो एक बहुत अच्छा, एक बढ़िया सोल्यूशन, एक बहुत अच्छा टाई अप आज हुआ है। तो हमें बड़ी खुशी है ताशकंद मेडिकल एकेडमी के साथ यहाँ पे जुड़ने में और उनका ऑफिस को रिप्रेजेंट करने में। सर, इस वक्त जो हम लोग काम कर रहे हैं मेडिकल एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, और नेशनल मेडिकल कमीशन के जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से हम लोग बाहर की किसी यूनिवर्सिटी का मेडिकल इंस्टीट्यूट इंडिया में नहीं खोल सकते। उनका ऑफिस यहाँ पर रह सकता है, लेकिन बच्चों को वहीं पढ़ना पड़ेगा और जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है उसी कंट्री में रह के डिग्री लेनी पड़ेगी। तो अभी यूनिवर्सिटी का तो जो है वो लीगली कोई प्लान बन ही नहीं सकता है। ताशकंद बच्चों को यहाँ से ताशकंद मेडिकल एकेडमी जाना पड़ेगा, वहाँ से अपनी डिग्री लेकर के इंडिया में आना। हमने ताशकंद मेडिकल एकेडमी से इस बात की रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने एक कोटा निर्धारित किया है कि भाई इतने स्टूडेंट्स हम लोग जो हैं यूक्रेन के यहाँ पे ट्रांसफ़र के ले सकते हैं। 2nd, 3rd, 4th और 5th ईयर तक हम लोग यूक्रेन के बच्चों का ट्रांसफ़र यहाँ पे ले सकते हैं। और इस ऑफिस का एक फ़ायदा ये भी है कि बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता था कि हम लोग कितने सेमेस्टर क्लियर किए हैं और हमको बाद में कितने सेमेस्टर में एडमिशन मिलेगा, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। तो वो सारा कोऑर्डिनेशन हम लोग दिल्ली में बैठ के इन लोगों के साथ में कर सकते हैं। और ये लोग अपना जो यूक्रेन के जो स्टूडेंट्स हैं, जहाँ तक उनकी पढ़ाई हुई है वहाँ से आगे की पढ़ाई अपनी ताशकंद मेडिकल एकेडमी में अपनी चालू कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने एक सोल्यूशन ताशकंद मेडिकल एकेडमी ने हमारे को दिया यूक्रेन के स्टूडेंट्स के लिए। जाहिर तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के भारत में आने से छात्रों के लिए विकल्प तो बढ़ेंगे ही, नए आयाम भी खुलेंगे। ऐसे में अच्छी शिक्षा के लिए इस तरह की साझेदारी से मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाने वाले छात्रों की मदद भी हो सकेगी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।